Yes, dear students, welcome to all of you in this session. As we know that we have finished the syllabus. Syllabus means chapter. हमने कौन सा पूरा किया है? Electricity का, right? So in this session now we are going to do some revision work, and this is the revision part one, and we are starting with numericals on combination of registers. And you will find these numericals are very simple, and these questions which we are going to discuss have been asked in previous years, okay, board exams. तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, तो इसमें फिजिक्स में घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, जैसे मेथड हम इसमें बता रहे हैं उसी तरह से इनको आप नोटबुक में सॉल्व करें और कोशिश करें कि इससे इन क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन खुद बनाएं. आप नए क्वेश्चन खुद बनाएं और उनको कमेंट बॉक्स में शेयर भी करें. ठीक है, तो दैट विल बी द एक्चुअल नॉलेज गेन. एंड डोंट रन आफ्टर मार्क्स. सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स आने से मार्क्स आएंगे. ओके, सो नॉलेज के लिए प्रयास करिए. एंड ये जो न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करिए. हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस को चेंज करके दिया है, उनमें उन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन पूछे भी गए हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मूव टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड एंड कीप द नोटबुक रेडी टू सॉल्व द questions and note down the questions. Okay, so thanks to all of you, and continue to save water for generations to come. And it's my humble request, if you like this video, do share with your friends and do like it. Okay, don't forget to जहां भी आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगता है फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. Yes, dear students, we have finished the electricity chapter and I'm sure all of you must have enjoyed. अब हम क्या करना जा रहे हैं? तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स, और उसके साथ साथ फिर हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखना इट इज एन आर्ट. नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम, इन होम एग्जाम ऑल्सो. एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स मीन्स हाउ टू एक्सप्रेस योर नॉलेज विच यू हैव गेन, राइट? So today I am starting with the numericals based on combination of registers, and I am sure you will enjoy these numericals because these will help you to gain knowledge. And if you go for science stream again in class 11, so you will be doing these kind of numericals in class 12 also, right? So now let's start the numericals, and I am going to write numerical on the board. And I expect you should note down this numerical in the notebook and साथ साथ इसको करते हुए रहिए, तभी प्रैक्टिस होगा, तभी इसका एडवांटेज होगा पढ़ने का, right? So now let's start the session. So this is the question here. Draw a schematic diagram of circuit with a battery of 12 volt, 3 resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm. It's not 15, it's 20. इसको 20 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपका. This is 20 ohm connected in parallel with an ammeter and voltmeter across 3 resistors. Also find the ammeter reading. Okay, with an ammeter and voltmeter जो है वो across 3 resistors किया गया. ठीक है, तो schematic means you have to mention the name of the devices also. पूरा इसमें करेंगे, ठीक? And show the direction of the current also. And उसके बाद में ammeter reading find करना है. तो ammeter reading means what do we need to find? Ammeter reading means क्या find करेंगे? Current. Yes, electric current. So शुरू करें इसको ड्रॉ करना, और आप बता देंगे कि देखिए ammeter कहाँ कनेक्ट करना है, voltmeter कहाँ कनेक्ट करना है. Then you will learn more. And this question has been asked in 2008 board exam. और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बोर्ड में आते ही रहते हैं. बिकॉज यहाँ व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो आपने लर्निंग की है अभी तक आप उसको शो कर रहे हैं कि यस आपने कुछ नॉलेज गेन किया है. तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका डायग्राम, और उससे पहले लिखना पड़ेगा आपको गिवन. सो इसकी प्रैक्टिस हम करा चुके हैं आपको. सो गिवन जरूर लिखिए, टू फाइंड जरूर लिखिए. ठीक है, तो it is make it a habit whether it is mathematics or physics, given to find जरूर लिखिए. ठीक, तो now diagram. तो डायग्राम बनाते हैं इसका. देखिए,
तो सबसे पहले हमारा ये बैटरी आ गया, दिस इज बैटरी, यस ये बैटरी हो गया। और ये हमारा वायर हो गया, कनेक्टिंग वायर, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ओके, अब ये हमारा वायर इधर आ गया और ऐसे ही वायर इधर आ गया हमारा। अब बताइए वोल्टमीटर का अमीटर कहां लगाए, हियर हियर और हियर, कहां लगाया अमीटर को? सम ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग। तो वोल्टमीटर सॉरी अमीटर को हम इधर लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं, यहां या यहां, कहीं भी लगा सकते हैं अमीटर को, है ना। उसके बाद में हमें ज्वाइन करने हैं रजिस्टर्स। तो ये हमारा आर्म बचा ये, सो हियर दिस इज वन रजिस्टर हियर, एंड उसके बाद में 3 रजिस्टर्स आर देयर, 5, 10 एंड 15। तो हमने दूसरा रजिस्टर लगाया यहां से, ये हमारा दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड रजिस्टर, ये हमारा थर्ड रजिस्टर हो गया, राइट, ठीक है। अमीटर को यहां भी लगा सकते हैं आप, है ना, अमीटर को यहां भी लगा सकते हैं। तो अमीटर को कहीं भी लगा सकते हैं, बट अमीटर को इसके अक्रॉस नहीं लगाएंगे। तो हम अमीटर को लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। दिस इज ammeter A and here it is positive and here it is negative, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ ammeter is connected to positive of बैटरी। अब देखिए ये रेजिस्टर्स हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 20 ओम, ठीक है। और करंट देखिए यहां पर क्या होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी शो करते हैं। So current I is coming, then it is divided into 3 parts. So you can find the current in individual resistance also. ठीक, उसके बाद में ये आ गया हमारा, yes. अभी वोल्टमीटर लगाना है across 3 resistors. तो वोल्टमीटर को कहां लगाएंगे? Yes, anyone? करिए इसको। Yes, तो वोल्टमीटर across 3 तीनों के लगाना है, तो वोल्टमीटर को हमने ये लगा दिया। This is वोल्टमीटर। यस, ये वोल्टमीटर हो गया। दिस इज नेगेटिव, तो इट शुड बी, ये कौन सा एंड होना चाहिए? पॉजिटिव, गुड, इट इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज नेगेटिव। देखिए नेगेटिव इज कनेक्टेड टू अगेन नेगेटिव। तो दिस वे आवर सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है। और चाहे तो यहां पर हम क्या करें, एक की लगा देते हैं, राइट। की इसमें दिया नहीं है एक क्वेश्चन में, लेकिन वी कैन फिक्स अ की आल्सो। तो ये हमारा पूरा डायग्राम आ गया, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो ड्रॉ इट इन द नोटबुक एंड मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो बिकॉज दिस टाइम इन बोर्ड एग्जाम यू आर गोइंग टू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस, टिपिकल हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे, दिस इज 100% श्योर, राइट। डन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अमीटर रीडिंग। अमीटर रीडिंग मींस इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो ये आपको समझना होगा, है ना। कई बार दे दिया जाता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक, और इसमें ऐसा दे दिया है कि अमीटर रीडिंग फाइंड करना है। तो अमीटर वी नो इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। एंड हाउ अमीटर इज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, गुड, तो ये सीरीज में है एंड दिस वोल्टमीटर इज इन पैरेलल। तो अब फाइंड करते हैं करंट। टू फाइंड करंट व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस 3 रेजिस्टर्स। तो ये 3 के 3 कैसे हैं? पैरेलल है। तो पैरेलल का हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन वी शैल यूज द फार्मूला V इक्वल टू IR, ठीक है। शुरू करें, तो शुरू करते हैं इसको। तो सेकेंड पार्ट नाउ, second part, okay. So here R1 say it is 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 is 20 ohm. So therefore equivalent resistance कितना हो जाएगा? 1 upon RP। तो P लिखा है because these 3 are in parallel, तो हमने RP लिख लिया, नो।
तो इसको करिए फटाफट। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ये फार्मूला भी लिख देते हैं एग्जाम में आप और आगे नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो यू आर गोइंग टू गेट हाफ मार्क। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो हियर 1/RP, it will be 1/5 plus 1/10 plus 1/20. Yes? Now we can find out कितना होगा इसका एलसीएम, जल्दी से करिए। It is better if you try on your own in the notebook. साथ साथ नोटबुक में करते रहेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, ठीक है? और अपने फायदे की बात देखिए, ठीक है? करिए, फाइंड करिए, हरी अप। Done? Okay. So LCM is here 20. So 5, 4 is 20, 10 2 and 21. So here what do we get? 4, 2, 6 and 1, 7. 7/20. Okay. तो यहां जल्दी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। This is 1/RP is equal to 7/20. तो therefore RP कितना होगा? RP is reciprocal of this. So that will be 20/7 ohm. तो देखिए ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20/7 ओम। ओके, तो आरपी आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये हमको कितना दिया है? दिस इज 12, दिस इज 12 वोल्ट, ये छूट गया था। तो नाउ वी कैन फाइंड आई, ठीक है? तो नाउ सिंस we know that I is equal to V upon R. तो V की वैल्यू कितनी है? This is 12. R is how much? 20/7. Just find out. Hurry up. अपने आप करें. This is 20/7 and it will be 12 into 7/20. यस, कितना आंसर आ गया? यस, कितना है? 4.2. यस, अक्षत इज राइटिंग 4.2. गुड। तो हियर आई कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 4.2 एम्पियर। ठीक है, देखिए सिंपल है हमारा। 2 6 12, 7 6 42, 42/10 हो जाएगा ये। एंड 42/10 मींस 4 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, है ना? तो 4.2 एम्पियर। तो देयरफॉर यहां लिखेंगे हम अमीटर रीडिंग इज 4.2 एम्पियर आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो अमीटर रीडिंग इज 4.2 एम्पियर। और यहां लिख देते हैं, यहां अगर विजिबल नहीं है तो ammeter reading is 4.2 ampere. Yes, do it. After this, can you find out the voltmeter reading? क्या voltmeter reading find कर सकते हैं? Yes, voltmeter reading कितना होगा? That is 12 volt, है ना? ये रहेगा, 12 volt ही रहेगा। And can you find the current in each resistance? ईच रेजिस्टेंस में करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं कि I1, I2, I3 कैसे होगा? तो यहां पर क्या होगा? V हमारा कितना है? 12 है। I1 निकाल सकते हैं V/R, ओके? 12/5, 12/10, 12/20. So this way you can find current also, electric current in each resistance. और उनका सम जो आएगा that will be again 4.2. इसको भी प्रैक्टिस करिए and you will find that जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है करंट क्या होगा? कम हो रहा है। तो इसमें सबसे कम करंट होगा और इसमें सबसे ज्यादा करंट होगा। ट्राई टू डू ऑन योर ओन। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स, फिर हम इसको दोबारा करा देंगे। बट प्रैक्टिस आप ही को करना है। ओके बेटा? यस, तो मैं रिपीट नाउ। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। 4 resistors of 4 ohm each are joined end to end. End to end means समझ सकते हैं पैरेलल या सीरीज?
सीरीज, एंड टू एंड मीन सीरीज, टू फॉर्म अ स्क्वायर, स्क्वायर बना रहे हैं वो, है ना, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स की बात है ना, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। ओके, तो इसमें हमें फाइंड करना है एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले हमें क्या करना होगा, इसका डायग्राम बनाना होगा, और उससे पहले लिखना होगा हमको गिवन, गिवन है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने, 4, यस, वैल्यू ऑफ ईच कितना है, दिस इज 4 ओम। टू फाइंड, ये लिख लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स, ठीक, ये आप खुद लिखेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको, डायग्राम बनाना है ना। तो दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो एंड टू एंड हमारे हैं, तो देखिए एंड टू एंड तो कैसा होगा, तो ये हमारा एक रेजिस्टर हो गया, ठीक। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम ऑन योर ओन, इससे पहले कि हम कंप्लीट करें डायग्राम खुद बनाएं, लर्निंग ज्यादा होगा। सो एंड टू एंड ये एक रेजिस्टर हो गया, दिस इज ऑफ हाउ मच, 4 ओम। इसके बाद में स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये दूसरा रेजिस्टर आ गया, ओके, दिस इज आल्सो 4 ओम, एंड देन थर्ड इज थर्ड, ये हमारा थर्ड रेजिस्टर हो गया, दिस इज आल्सो ऑफ 4 ओम, एंड देन लास्ट वन, ठीक, तो दिस इज आल्सो 4 ओम। तो दीज आर द 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड एंड टू एंड। तो देखिए सीरीज में आ गए, यहां से हम शुरू करें तो A, दिस इज B, एंड दिस इज C, एंड दिस इज D। ओके, सो करंट अगर यहां से जा रहा है तो देखिए ऐसे जाएगा, फिर ये और वापस यहां से आएगा, ठीक है ना। तो ये चारों कैसे हैं, सीरीज में है। तो एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स, आप A के बाद B ले सकते हैं, B या C ले सकते हैं, C या D ले सकते हैं, A और D को भी ले सकते हैं, है ना। एडजेसेंट मींस एक के बाद एक, और ट्राई करेंगे कि डायगोनल भी फाइंड करें। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायगोनल्स A और C, तब क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है। शुरू करें, तो फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, ठीक, तो डायग्राम पूरा करिए, हरी अप। यस, डन। तो ये देखिए, ये हमारा है R1, इसको मान लेते हैं दिस इज R1, एंड दिस इज R2, एंड दिस इज R3, एंड दिस इज R4, ठीक। ऐसे यहां लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर, R1 इज 4 ओम, R2 इज 4 ओम, R3 4 ओम, R4 4 ओम। ओके, तो अगर हम ये कॉर्नर मान लें, एडजेसेंट कॉर्नर्स A, एक तो ये ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं ये, ठीक। तो व्हाट यू सी, करंट ऐसे जा रही है, ठीक, दिस इज करंट हियर गोइंग, एंड देन, तो ये तीनों रजिस्टर देखिए, ये दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक के बाद एक में है, एंड टू एंड है। तो फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, है ना, A से B, B, C एंड C, D, इनका फाइंड करेंगे। शुरू करें, तो नाउ राइट डाउन, हरी अप। यस, डन। तो इसमें लिखेंगे, सो वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and D, A and D। तो ये R4 हो गया, A and D means R4 रेजिस्टेंस। तो R1, R2 and R3 are in series, okay। तो नाउ लिखेंगे R1, R2 and R3 are in series, ये सीरीज में है ना। तो सीरीज में, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS will be equal to R1 plus R2 plus R3,
and this will be how much? 4 4 4 है, तो 4 plus 4 plus 4 is equal to कितना आ जाएगा? 12 ओम। तो इनका देखिए 12 ओम आ गया। तो इस पे डायग्राम हम कैसा कर सकते हैं? तो डायग्राम ये हो जाएगा इसका कि A तो ये रहेगा, देखिए दिस इज R4 इक्वल टू 4 ओम एंड दिस इज A एंड दिस इज D। अब तीनों का मिलकर एक बन गया कितना? 12 ओम। तो हियर इट इज 12 ohm resistance. This is 12 ohm resistance. ओके, ये 12 ohm resistance बन गया। तो देखिए अब ये दोनों कैसे आए यहां पर? These are in parallel, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और फिर ये इधर आ रहा है, दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। तो now these two are in parallel. तो we now need to find equivalent resistance of parallel combination. तो लिखेंगे यहां पर now 12 ohm and R4 are in parallel. Therefore, RP it will be कितना हो जाएगा? सिंपल, दो रेजिस्टर है तो सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला है ना, यहाँ पर RS इंटू R4 अपॉन RS प्लस R4 and this will be how much? 12 into 4 upon 12 plus 4. So this is a simple formula. So here it will be how much? 12 into 4 upon 16. तो देखिए मल्टीप्लाई मत करिए कभी भी, whether it is mathematics or physics or any subject. तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? बड़ा हो जाता है नंबर, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। So 12 into 4, अब देखिए कितना इजी हो जाएगा? 4 4 जा 16 and 4 3 जा 12. तो therefore इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम। कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 3 ओम। तो अक्रॉस एंड्स A एंड B, एडजेसेंट एंड्स जो है ये 3 ओम होगा। आप कोई भी एंड ले लें, A B का लेंगे तब भी आंसर ये आएगा, B C लेंगे तब भी 3 आंसर आएगा, C D लेंगे तब भी आंसर विल रिमेन सेम। आंसर विल रिमेन सेम बिकॉज ईच रजिस्टर इज ऑफ यस सेम वैल्यू, 4 ओम का है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। यस डन हो गया, तो पूरा आंसर लिख देंगे। तो एडजेसेंट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर A एंड D इज 3 ओम। नाउ ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। जस्ट हरी अप, ट्राई टू फाइंड आउट। इसको फिर हम करते हैं। यस, ट्राई टू फाइंड आउट। गुड। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायगोनल्स, ओके, डायगोनल कैन बी B एंड D और A एंड C। इन डायगोनल्स के बीच को में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तब कैसे करेंगे? देखो, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। अगर आपने कर लिया तो आप बता सकते हैं कितना आंसर आएगा। यस, स्नेह इज राइटिंग सर आंसर विल रिमेन 4। लेट्स सी कैसे 4 रहेगा। एक बच्चे ने अभी किया क्वेश्चन को, स्नेह ने, है ना, तो आंसर शी इज राइटिंग 4। तो लेट्स डू इट। तो हम कौन से डायगोनल लें? आप B और C को, D को लेके चलिए, हम लेके चलते हैं A एंड C को। प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एक क्वेश्चन से हमने पहले भी आपको कई सेशन में बोला है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, सो देन एंजॉय करें, फिजिक्स को एंजॉय करें। ठीक, सो अब फाइंड करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक, सो वी नीड टू फाइंड equivalent resistance between A and C। हम A एंड C के बीच में फाइंड कर रहे हैं, आप फाइंड करेंगे B एंड D के बीच में। आप शुरू करिए B एंड D के बीच में, हम शुरू कर रहे हैं A एंड C के बीच में, है ना। तो देखिए A एंड C के बीच में फाइंड करना है ये। तो ये जो दोनों रजिस्टर है R4 एंड R3, R4 एंड R3, ये दोनों कैसे हैं? देखिए सीरीज में।
ऐसे इनको देखें तो ये दोनों कैसे हैं, ये भी सीरीज में है। तो फर्स्ट वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R3 एंड R1 एंड R2। उसके बाद में देखिए क्या होगा, इनका एक हो जाएगा, इसका एक, और A और C में है ना, तो ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आप भी शुरू करेंगे। नाउ सिंस R1 and R2 are in series, तो therefore equivalent resistance RS कितना हो जाएगा यहाँ पर, it will be R1 plus R2 is equal to 4 plus 4 is equal to 8 ohm. Similarly, okay, R3 and R4 are in series. Therefore, RS between A and C, this will be R3 plus R4 is equal to 4 plus 4 is equal to 8 ohm. ठीक है, तो देखिए 8 ओम यहां आ गया और यहां भी 8 ओम है। तो नाउ सर्किट क्या होगा, अब इनका जो सर्किट, नया सर्किट कैसा बन जाएगा, तो देखिए ए रहेगा, ए से क्या होगा, दिस इज ए, सो एक सर्किट हमारा ये आ गया, दिस इज, एंड सेकंड से देखिए 4 and 4 दीज आर इन सीरीज, तो ये हमारा सी रहेगा एंड ये आ गया हमारा, ठीक है, तो दिस इज 8 ओम एंड दिस इज आल्सो 8 ओम। तो यहां से जो देखिए करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अगर यहां से सर्किट आ रहा है ये, ठीक, बैटरी है, तो नाउ दीज टू आर इन पैरेलल, तो वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब लिखेंगे, नाउ यहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, इसको रब करते हैं, तो नोट डाउन, हरी अप, डन, ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। Now between A and C, 8 ohm and 8 ohm are in parallel. So therefore parallel का निकालेंगे हम resistance, तो RP, तो there are two resistors, है ना, only two resistors, तो फिर easy वाला method करेंगे। Okay, so it will be 8 into 8 upon 8 plus 8, तो 8 into 8, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, and 8 plus 8 it is 16, so 8 to the 16 and 2 4 the 8, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम, तो स्नेह हैड रिटन 4 ओम। तो नाउ क्या देखिए यहां पे मैजिक आया, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर, तो व्हेन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनल्स, एनी टू डायगोनल्स, it is 4 ohm, it is 4 ohm. So here equivalent resistance between diagonal A and C is 4 ohm. So write down complete answer. Equivalent resistance between A and C is equal to 4 ohm. तो एक नया क्वेश्चन बन गया। तो in board questions are not difficult. Again remember, questions are never difficult, these are just typical, so never have pressure of board exam। अगर कोई कहता है कि बोर्ड एग्जाम है बहुत बड़ी है, बहुत टफ होता है, so never, board exam is very very simple, just we have to go from one school to another school, nothing else, ठीक है। so again prepare very smoothly, आराम से पढ़ते रहिए, don't have pressure of exams, pressure of studies, okay, done। so now next question। Now this is a question which has been asked twice in board, 2013 and 2014 में, okay, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो here you need to find effective resistance, effective resistance find करना है, means equivalent resistance, then current, electric current कितना पास हो रहा है सर्किट में, okay, how much electric current is being provided by this cell, एंड थर्ड फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 10 ओम, इसका में पोटेंशियल डिफरेंस
कितना होगा, ये फाइंड करना है ना। सो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू डू, करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन अक्षिता ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कैन वी ज्वाइन अ मीटर इन पैरेलल? सो कौन बताएगा? ओके, नीला इज रेजिंग हिज हैंड। ओके, तो नीला इज सेइंग सर अ मीटर कैन नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मीटर को कभी पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर करेंगे तो क्या होगा, है ना, करेंगे तो क्या होगा, इट विल बर्न। क्यों बर्न होगा? रीजन व्हाई? ओके, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर्स। और पैरेलल में क्या होगा, जब कनेक्ट करेंगे तो V इज वेरी हाई एंड जो हमारा अमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बिकॉज इट हैज टू मेजर द मैग्नीट्यूड करंट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है उसमें, जो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू द अमीटर, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, इट विल बर्न द रेजिस्टेंस, है ना, अमीटर हमारा खराब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन हियर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, गिवन लिख लेंगे, उसके बाद में टू फाइंड, नेवर फॉरगेट टू राइट गिवन एंड टू फाइंड। नाउ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। तो देखिए ये दिस इज R1, तो R1 इज हियर 5 ohm and R2 is 10 ohm and V you can write down 2 volt. Okay, so now 5 ohm and 10 ohm are in series. Okay, so therefore equivalent resistance कितना होगा, RS, this is RS, it will be R1 plus R2 is equal to 5 plus 10 is equal to 15 ohm. Yes, effective resistance आ गया हमारा A part. Now we need to find B part. B part क्या है, देखिए करंट फाइंड करना है ना, तो ये क्विकली फाइंड आउट। नाउ सिंस we know that ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वन मार्क फॉर ईच पार्ट। V इज इक्वल टू IR एंड V कितना है, देखिए 2 वोल्ट है, तो V की जगह लिखेंगे हम 2, I हमको फाइंड करना है एंड R कितना आ गया हमारा 15, तो हियर इट इज 15, तो देयरफॉर I विल बी 2 अपॉन 15 एम्पियर। सो एग्जाम में भी आप इतना छोड़ सकते हैं आंसर, नो नीड टू गेट द आंसर इन पॉइंट्स, ये भी आपका सही है, 2 अपॉन 15। एनी प्रॉब्लम है? अब थर्ड पार्ट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ohm। सी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, अक्रॉस 10 ohm। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला विल बी सेम, है ना। ओके, तो सिंस V इज इक्वल टू IR, V हमको फाइंड करना है, I की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 15, ये जो सर्किट में करंट जा रहा है 2 अपॉन 15 इंटू R। हमें 10 ohm के अक्रॉस फाइंड करना है, क्रॉस 10 ohm, तो R यही वाला लेंगे, है ना, तो हियर इट इज 10। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर, जस्ट सॉल्व इट, कितना आता है देखिए। ओके, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इट कम्स अप टू बी 4 अपॉन 3 V। अगर आप चाहते हैं तो पॉइंट में फाइंड कर सकते हैं, तो पॉइंट में कितना आएगा 1.33 वोल्ट। तो यहां लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ohm रेजिस्टर इज 4 अपॉन 3 वोल्ट और 1.33 वोल्ट। तो पूरा आंसर यहां लिखेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। इसमें हम एडिशनल क्वेश्चन जोड़ देते हैं। अगर हम यहां पर एक अमीटर लगा दें, इफ आई पुट एन अमीटर हियर, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो अमीटर का रीडिंग कितना होगा, एनी वन ऑफ यू?
अगर आपको मालूम है तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अभी सॉल्व करते हुए आया, तो हमने कहा चलो पूछ लेते हैं बच्चों से। तो नॉलेज मस्ट बी शेयर, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये सेशन अच्छा लगा है आपको तो ये शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पसंद आया है तो लाइक बटन भी प्रेस करिए, और कुछ नहीं आता है, सिर्फ प्रेस ही करना है, ठीक है। एंड ठीक है, फाइन करेंगे, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। एंड देन इफ आई ज्वाइन हियर वोल्ट मीटर, यहां पर वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, एंड दिस इज प्लस, ओके। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, एनीवन? ये भी लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा। सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम वे यू कैन फाइंड आउट द वोल्ट मीटर। अगर हम यहां लगा दें वोल्ट मीटर, तो यहां पर वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक, कि यहां पर वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा और यहां पर ये कितना होगा, सेम रहेगा डिफरेंट? तो 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई होप, बिकॉज यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, यू हैव टू गेट नॉलेज। नॉलेज आएगी तो मार्क्स आएंगे। इफ यू वांट टू गेट मार्क्स तो ओनली एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर नॉलेज लेनी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, बिकॉज यू विल बी, इफ यू आर गोइंग टू हैव साइंस इन क्लास 11, ओके, एंड 12th में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स एंड डू प्रेस लाइक बटन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड कंटिन्यू टू सेव वाटर। सभी चैनल्स पर, सभी जगह हमने बहुत स्कूलों में देखा है, बहुत स्कूलों में विजिट करा, सब जगह कहते हैं पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, नंबर लाइए। But we need to take care of our environment, our surroundings also. This is also important. So continue to save water, continue to save environment. Thanks to all of you. God bless you.